Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 12th of January 2024-2025. So first of all, we are talking about Kolkata is the second in the global list of cities with the slowest traffic. So this highlights that the urbanization must be planned and the traffic flow management becomes very important for the quality of life and productivity of the city. So we are providing alternatives like we are expanding the network of metro to the major urbanized cities. We are providing public transport like buses and also Gramin Seva. Then we are also increasing the bus fleet. We are implementing the traffic flow management. We can also integrate AI systems and also promote the deployment of CCTVs and IoT systems for better monitoring and for also providing emergency response to the traffic issues. Also, there is it is essential that we must provide the pedestrian also a safe space. जैसे कि इस इमेज में भी देख सकते हैं कि जो फुटपाथ है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. देन देर आर ऑल्सो पॉलिसीज टू रिड्यूस द व्हीकल डेंसिटी क्योंकि कंजेशन जो चार्जेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं ड्यूरिंग द पीक आवर्स. कार पूलिंग इनिशिएटिव, then also road expansion and maintenance, then creating the road infrastructure according to the population density becomes important. So we are also promoting EVs, that is electric vehicles, because not only it is resulting in congestion or lack of productivity, but also it is resulting in carbon dioxide, methane emissions. So that is why we are also providing subsidies for encouraging EV adoption. देन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बन जाता है ऑपरेशन साइबर शील्ड राजस्थान जयपुर के अंदर, जहाँ पे 30 फ्रॉडस्टर्स को पकड़ा गया है. तो हमने देखा कि जो चैलेंज है ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज बिकमिंग मोर क्रिटिकल विद द एक्सपैंडिंग नेटवर्क ऑफ इंटरनेट. सो इसको हम एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं ऑपरेशन साइबर शील्ड. Then Greenland for security. Can China say the same for Taiwan? तो पीएसआईआर पर्सपेक्टिव से भी जब बात करते हैं ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, सॉवर्निटी, द एम्बिशंस फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन, देन उस केस में हम इसकी भी बात कर सकते हैं the ambitions of America to expand and to purchase or to include the Greenland or Canada's region also. So ये highlight करता है कि there must be a balance between national security and territorial expansion, and जो consideration है of the country of the nation जिसकी आप बात कर रहे हैं that is very important. क्योंकि सेम स्टैंड पे हम चाइना को काउंटर करते हैं इन दी stands for Taiwan. तो दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि जो नेशनल सॉवर्निटी है ऑफ बोथ द पार्टीज एंड द सिक्योरिटी ऑफ बोथ द पार्टीज इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो with this neo-realist approach, there is also essential need to secure the strategic territories and to make sure that there is balance of power. So we can see जो ग्रीनलैंड है व्हाई इज इट बिकमिंग द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हियर, क्योंकि वहां पे जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जो कि सिक्योरिटी के लिए आर्कटिक रीजन के ऊपर डोमिनेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा. हिस्टोरिकली वर्ल्ड हिस्ट्री में भी बात करते हैं तो लुइसियाना परचेज बाय द यूएस वो भी यही डेमोन्स्ट्रेट करता है कि रियलिस्ट स्ट्रैटेजी था ऑफ यूजिंग टेरिटोरियल एक्सपेंशन टू प्रोजेक्ट पावर. एंड वही सेम पैटर्न हम यहाँ पे भी देख सकते हैं. ऑल्सो ग्रीनलैंड इज वेरी रिच इन रिसोर्सेज, दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट. चाइना एंड ताइवान की बात करते हैं तो चाइना इज एडवोकेटिंग फॉर वन चाइना पॉलिसी and it is having aspirations for global influence. तो national security, balance of power, and the consideration agreement from both the parties is very important इस territorial claim के लिए.
ना कि सिर्फ इसके डोमेस्टिक लेवल पे इम्प्लीकेशंस देखे जाएंगे बल्कि ग्लोबल लेवल पे भी देखे जाएंगे। देन टेरेस टूरिज्म, अहमदाबाद में हमने देखा काइट फ्लाइंग वहां पे प्रमोट किया जा रहा है। ऑल्सो ओल्ड अहमदाबाद, इट वाज गिवन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी टैग इन 2017। सो ये दिखाता है कि नॉन कन्वेंशनल टूरिज्म में हम टेरेस टूरिज्म भी प्रमोट कर सकते हैं कुछ यूनिक जगहों पे। इंडिया के सॉफ्ट पावर को भी ये प्रमोट करता है एंड ऑल्सो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी प्रमोट करता है। तो टेरेस पैकेज भी दिया जाता है। देन नेक्स्ट, IIT Roorkee, it uses bacterial enzymes to degrade the plasticizers. So plasticizers होता क्या है? Plasticizers they are commonly found in plastic जो कि personal care product, household item जो हम यूज करते हैं उसके अंदर बेसिकली मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जो कि एक हेल्थ रिस्क पोज करते हैं and they can also be absorbed by the humans, they can also leach into the environment. तो HMWP that is high molecular weight पाथलेट्स जो प्लास्टिसाइजर्स के अंदर होते हैं वो बेसिकली डिफिकल्ट हो जाते हैं टू डिग्रेड। तो जो टीम है फ्रॉम IIT रुड़की, इट हैज डेवलप्ड दिस बैक्टीरियल एंजाइम जो कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो HMWP है उसको डिग्रेड करने में हेल्प करेगा एंड डिफरेंट बैक्टीरियम से उसको डराइव किया गया है। तो बेसिकली उसकी रीयूजेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है। जो ईस्टरेज एंजाइम है इट रिमेन स्टेबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसकी रीयूजेबिलिटी रीयूज भी उसको हम बार बार कर पाएंगे। सो प्लास्टिक पोल्यूशन, एनवायरमेंटल हेल्थ, द रिस्क्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, यही ये शोकेस भी करता है। देन जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की हमने बात की थी कि हम 10,000 से भी ज्यादा मैपिंग कर चुके हैं ऑफ द जीनोम्स जो कि एंसेस्ट्रल नॉलेज पता लगने में हमें हेल्प करेगा रिगार्डिंग वॉर, रिगार्डिंग डिसीजेस। उसी सेम बेसिस पे हम सेकेंड फेज में डिजीजेस के ऊपर भी फोकस करेंगे जिसमें स्पेसिफिक डिजीज जो कि जेनेटिक डिजीज हो सकती है उनको ट्रीटमेंट में हमें हेल्प मिल पाएगा, इंसाइट मिल पाएगा जेनेटिक वेरिएशन को लेके। जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, कई बार रेयर डिजीज होती है, कई बार कैंसर होता है, तो उन चीजों के ऊपर भी इंसाइट मिल पाएगा एंड हम बोल सकते हैं कि मेडिसिन को हम और पर्सनलाइज कर पाएंगे इसकी हेल्प से। तो सेकेंड फेज में डिजीज जिनोम प्रोजेक्ट के अंदर डिजीज के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। जैसे कि पैंडेमिक आया था जब कोविड-19, तो उसके अंदर भी हमें ऐसे जिनोम प्रोजेक्ट से हेल्प मिलेगा जिसमें इंडिया स्पेसिफिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी। तो एक डेटाबेस होना बहुत जरूरी है जिसके लिए जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट काम भी कर रहा है। देन लेसन्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट महाकुंभ। तो हम देख सकते हैं कि जो महाकुंभ मेला होता है वो वर्ल्ड लेवल पे एक यूनिक गैदरिंग है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि एक्सटेंसिव अरेंजमेंट किया गया था जब पहली बार भी अरेंज किया गया, बट एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट के चैलेंजेस आए, कॉलेरा रिस्क देखा गया था, ओवर क्राउडिंग एक चैलेंज था। तो पीपल इन थाउजेंड्स दे सर्च्ड फॉरवर्ड ड्यूरिंग अ की बाथिंग डे। तो क्या लेसन हमने वहां से सीखा, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। हमने सीखा कि क्राउड कंट्रोल कैसे करना है, बेटर प्लानिंग कैसे करना है, इन्फोर्समेंट ऑफ मेडिकल एडवाइजरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे लार्ज स्केल इवेंट के लिए। तो एक सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपेयर्डनेस की तरफ हम बढ़े एंड हमने अपने कम्युनिकेशन को और ज्यादा इंटीग्रेटेड बनाया। तो मल्टीपल लेवल्स पे हमने मैनेजमेंट करना सीखा। अभी हमने रिसेंटली देखा कि हम अंडर वाटर ड्रोन्स भी यूज करने वाले हैं फॉर द सेफ्टी। हम CCTVs को यूज कर रहे हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिड्रेसल काउंटर्स हमने सेटअप किए हैं। तो ये दिखाते हैं कि कैसे मल्टीपल लेवल अरेंजमेंट किया गया है एंड कैसे हम सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपेयर्डनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। देन माइक्रो फाइनेंस,
It nearly doubled to over 28,000 crore rupees in. विभोर। जी सर. I is she around? So the audio is not there, so I'm not sure, sir. हाँ तो आप चैट बॉक्स में डालो, मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देखता हूँ। So, what are the lessons that we have learned from the first Mahakumbh? 70 years ago, we hosted the first Mahakumbh Mela in Allahabad. So, it is a very unique gathering on the world level. Also, the independent India was holding it for the first time. So, what are the lessons that we have learned? So, it was organized over 1,300 acres of land. Extensive arrangements were made. Despite the warnings of overcrowding and cholera risks, there were administrative mismanagements which led to chaos in some of the parts. The problem of stampede was there. Then also on the key bathing day, the crowd control became more difficult. Better planning was necessary. Enforcement of the medical advisories was very important. तो ये सारी ही चीज़ों में हमने अभी काम किया है. हमने देखा कि for the security of the people attending the मेला, we have been also integrating technology, जिसमें we will be also using the underwater drones, we will be using CCTV cameras, and we are also integrating the AI models in that. We are also providing medical facilities, sanitized washrooms, and also we have moved forward towards systematic administrative preparedness. And with improved communication, we are also ensuring the safety of the people. So, not only managing such a big crowd, we are also making it a very unique experience and a religious journey for the people who are attending it. Then regarding microfinance, delinquencies, they have doubled. Oh, and they have reached over 28,000 crores a year. लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है. एंड जो एनपीए होता है जिसकी हम बात करते हैं, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट.
माइक्रो फाइनेंस लोन्स में दे अकाउंट फॉर 6% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो, जबकि लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो इट वाज 3% लास्ट ईयर। रीजनल कंट्रीब्यूशन में भी वेरिएशन हमने देखा। फॉर एग्जांपल बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड आल्सो उड़ीसा, दे अकाउंट फॉर 62% ऑफ द इंक्रीमेंट, एंड बिहार ओनली इज कंट्रीब्यूटिंग more than 1000 crore rupees, followed by Uttar Pradesh and Tamil Nadu and Odisha. So क्या factors हैं that has led to this event? क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं? तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज ओवर लेवरेजिंग ऑफ द बोरोअर्स। जो एक्सटेंडेड लोन प्रोवाइड किए जाते हैं टू दी हाई इंडेटेड इंडिविजुअल्स, एंड देन दे आर स्ट्रगलिंग टू रीपे दैट लोन। इसके अलावा फ्रीक्वेंट स्टाफ एट्रिशन हम देख सकते हैं, क्वालिटी इशू देख सकते हैं इन दी लोन डिसबर्समेंट, एंड ऑल्सो जो कलेक्शन होता है इन दी अफेक्टेड सेक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी देखे गए, जैसे कि एक्सट्रीम वेदर हैज आल्सो हिंडर्ड द लोन रिकवरी एफर्ट्स, आल्सो इन सम एरियाज देयर वर इलेक्शंस। तो कहीं ना कहीं इस पूरे ही प्रोसेस की वजह से इकोनॉमिक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, एंड इट इज क्रिएटिंग अ समवॉट अ स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, जिसमें हाउस होल्ड इंडेटनेस इंक्रीज हुआ है, एंड द लिमिटेड एक्सेस टू माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज इज बीइंग सीन। तो इंडिया का जो रेटिंग एंड रिसर्च भी है, उन्होंने भी रिवाइज किया है द आउटलुक फॉर द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर फ्रॉम न्यूट्रल टू डिटोरिएटिंग, उन्होंने चेंज किया है। क्यों? क्योंकि यही सारे रिस्क हम फेस कर रहे हैं, ऑफ फ्रॉड, ऑफ ओवर लेवरेजिंग एंड स्टाफ एट्रिशन। तो जो चैलेंज है इन दी लोन डिसबर्समेंट एंड रिस्किंग एंड राइजिंग रिस्क ऑफ वेटेड एसेट्स, वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने की भी जरूरत है फॉर इंक्रीमेंटल डिसबर्समेंट, ताकि जो रीपेमेंट साइकिल है उसमें ब्रीचेस हमें देखने को ना मिले एंड फंडिंग अवेलेबल हो। तो क्रेडिट क्वालिटी इशू हम देख सकते हैं, इसको हम टर्म कर सकते हैं इन दी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन अ ब्रॉडर टर्म को इम्पैक्ट कर रहा है। Then dehyphenation policy of India, that becomes important here. Indonesia's president, अभी तक हम देख रहे हैं कि इंडियन रिपब्लिक डे के लिए जो चीफ गेस्ट को डिक्लेयर किया जाता है कि ये आने वाले हैं, वो अभी तक हमने नहीं किया है। तो डीहाइफिनेशन पॉलिसी इंडिया की क्या है, उसको हम थोड़ा समझ सकते हैं, हमारे आईआर पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो डीहाइफिनेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया हम बोल सकते हैं एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच है फॉरेन रिलेशंस में, जिसमें इंडिया इज डीलिंग विथ टू और मोर कंट्रीज सेपरेटली। अपनी जो रिलेशन है विद द वन कंट्री, इट इज नॉट लेटिंग दैट अफेक्ट इट्स टाइज विद द अनदर, एंड इट एक्सपेक्ट्स ईच bilateral relationship to basically practice this also with India. As हमने देखा कि पास्ट में इंडिया एंड पाकिस्तान पॉलिसी वर मेजरली हाइफिनेटेड बाय सेवरल अदर पावर्स। तो जैसे कि इंडिया भी है, वो डीहाइफिनेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करता है, जो कि हम देखते हैं इन द केस ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टीन। इंडिया का जो टाई है विद द इजराइल, इट इज दे वर कॉशियस बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द पैलेस्टीन ऑल्सो। तो अंडर द डीहाइफिनेशन पॉलिसी, इंडिया ने अपने रिलेशनशिप स्ट्रेंथन किए विद इजराइल ऑल्सो, while it also continued to support the Palestinian cause diplomatically. तो ये शोकेस करता है कि इंडिया ने किसी भी साइड को चूज नहीं किया, उसने अपनी टाइज को बिल्ड किया बेस्ड ऑन इट्स ओन इंटरेस्ट्स। सेम सिमिलरली हम चाइना ताइवान केस में भी देख सकते हैं। एंड क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखने के लिए, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी गोल्स को बनाए रखने के लिए, एंड कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल प्लेयर इंडिया इमर्ज होते जा रहा है। तो दिखाता है इंडिया की डिप्लोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको डीहाइफिनेशन पॉलिसी मैक्सिमाइज भी करती है। तो अपने स्ट्रैटेजिक गोल्स भी इंडिया प्रमोट करता है। उसके अलावा दोनों ही साइड्स को अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के बेसिस पे एंगेज करता है, एंड ऑल्सो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी अपफ्रंट पे रखता है ग्लोबल लेवल पे। नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हाई इन इंडिया। रिसेंटली हमने बात की थी रिगार्डिंग नाइट्रेट्स प्रेजेंस इन वाटर, ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड इन दी वाटर।
how it is impacting not only the health of the soil, how it is impacting the groundwater through seepage, but also the health of the humans, specifically the neural health. So India is facing groundwater contamination due to excessive presence of nitrogen from the fertilizers, from the sewage, and also different harmful chemicals from the industrial discharge. तो जो extent है of contamination वो कितना है? तो around 20% of the districts they have groundwater with nitrogen levels exceeding the safe limit. जिसमें मेन पॉल्यूटेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो मेजर पॉल्यूटेंट्स में अमोनियम, अमोनिया, नाइट्राइट एंड ऑल्सो नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ये सब आ जाता है. दे आर इम्पैक्टिंग मेजरली इन दी रीजन्स ऑफ राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड ऑल्सो अदर स्टेट्स आर इंक्लूडेड. तो क्यों हो रहा है ये? क्यों सीरियस है कंटामिनेशन? क्योंकि ओवर यूज कहीं ना कहीं होता है ऑफ द फर्टिलाइजर्स. अनट्रीटेड सीवेज जो है उसको डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया जाता है. ऑल्सो देर इज राइज इन इरिगेशनल एक्टिविटीज जिसकी वजह से कंटामिनेशन और भी ज्यादा वर्सन होते जा रहा है, जिसकी वजह से ये हेल्थ रिस्क भी पोज करता है. साथ ही साथ सीरियस इश्यूज जैसे कि कैंसर, डेवलपमेंटल इश्यूज इन द बेबीज. ऑल्सो ग्राउंड वाटर को भी कहीं ना कहीं कंटामिनेट करता है. तो स्ट्रिक्ट ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. वी शुड बी प्रमोटिंग बायो फर्टिलाइजर्स, ऑल्सो सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसकी वजह से जिसमें एफिशिएंट इरिगेशन भी आ जाता है ताकि रन ऑफ को हम मिनिमाइज कर पाए. देन ऑल्सो इम्पोर्टेंट बॉडी CGWB, दैट इज सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जो कि मॉनिटर करता है ग्राउंड वाटर क्वालिटी को. एंड जो कंटामिनेशन है इट इज ग्रोन बाय 60% सिंस 2009. सो ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. तो इम्पोर्टेंट रोल इस बोर्ड का जरूरी है. जो कंसर्न है उनको एड्रेस करना जरूरी है एंड ऑल्टरनेटिव होना चाहिए इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. एंड ऑल्सो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम सेटअप कर रहे हैं. तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप करने के लिए भी हमने वो बात की थी कि हम इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर का रोल भी इंक्रीज हो पाए, क्योंकि पूरे ही सेक्टर में हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर रोल अभी डोमिनेट करता है. तो हम डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं एंड एफिशिएंसी को भी इंक्रीज कर सकते हैं. देन मेटा, इट इज शटिंग डाउन द फैक्ट चेकर्स एंड बेसिकली कम्युनिटी ड्रिवन पोस्ट सिस्टम यहाँ पे बनाया जाएगा, जो कि ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे ऑलरेडी यूज होता है, जिसमें जो सिटीजन्स हैं, जो जो कस्टमर है, बेसिकली वही फीडबैक प्रोवाइड करेगा एंड जो यूजर्स हैं वही डिसाइड करेंगे कि ये फेक न्यूज है, कि ये रियल न्यूज है, या फिर ये मैनेजेबल है कि नहीं है. तो फैक्ट चेकर्स जो है उनको इंट्रोड्यूस किया गया था टू कर्ब दी मिस इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द पैंडेमिक. मेटा जो है वो ये आर्ग्यू करता है कि फैक्ट चेकिंग की वजह से कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल बायस देखा गया है फैक्ट चेकिंग के अंदर. एंड ऑल्सो इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लेटफॉर्म हैज डिक्रीज्ड. बहुत ज्यादा सेंसरशिप, उन्होंने बोला कि चैलेंजेस ऑफ सेंसरशिप, टू मच सेंसरशिप इज देयर. तो रिड्यूसिंग फैक्ट चेकर्स, क्या वो और ज्यादा वर्सन नहीं करेगा मिस इन्फॉर्मेशन को? सेंसिटिव इश्यूज जैसे कि इलेक्शन, पब्लिक हेल्थ, उनके लिए कितना ज्यादा जरूरी एंड नेसेसरी हो जाता है the implementation of fact checking on such big platforms. Then also activists and regulators, they are also warning that it could harm the accountability and also it could promote unchecked content, the distribution of unchecked content with biases. So Meta is planning to explore the AI driven moderation system, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा. तो दो ऑप्शन की बात की जा रही है, एक तो AI ड्रिवन मॉडरेशन सिस्टम, देन ऑल्सो कम्युनिटी पोस्ट सिस्टम, जिसमें यूजर्स जो हैं वही जो कम्युनिटी नोट्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा एंड उनके व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा रिगार्डिंग द न्यूज दैट इज इट फॉल्स और इज इट ट्रू.
देन आर द लिथियम बैटरीज ऑन फ्लाइट्स डेंजरस? तो लिथियम आयन बैटरीज जो हैं उनके साथ सेफ्टी रिस्क, सेफ्टी कंसर्न कई बार हम लिंक करते हैं। अगर फ्लाइट्स में उनको बात की जाए यूज करने की, तो क्या वो ओवर हीट हो सकती हैं? कैन दे लीड टू पोटेंशियल फायर्स? तो सेवरल केसेस हमने कार के केसेस में, टू व्हीलर्स के केसेस में देखा दैट देयर वर बैटरी रिलेटेड फायर्स। तो क्या सच में हम एविएशन बॉडीज के अंदर यूज कर सकते हैं लिथियम आयन बैटरीज को? सेफ हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो लिथियम आयन बैटरीज जो हैं दे आर प्रोन टू थर्मल रनवे। थर्मल रनवे क्या होता है? तो थर्मल रनवे एक चेन रिएक्शन होता है जिसकी वजह से जब ओवर हीटिंग होती है तो एक्सप्लोजन हो सकता है। तो एयरलाइंस एंड डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स वो फोकस करें कि बैटरी की पैकेजिंग इस तरीके से की जाए कि प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सके अगेंस्ट द फायर। तो फायर सप्रेशन सिस्टम यूज किए जाने की बात की जा रही है। देन रिगरस सेफ्टी चेक्स किए जाएंगे। बट क्या इन द लॉन्गर रन इन लिथियम आयन बैटरीज फॉर फ्लाइट्स जहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन कॉन्टिन्यूअस एंड बड़े लेवल पे होता है, क्या वहाँ पे सच में लिथियम आयन बैटरी एक सस्टेनेबल ऑप्शन है? वहाँ पे हम बायोफ्यूल एज एन ऑल्टरनेटिव भी बात करते हैं। तो डेंजरस हो सकता है, मिसलेनियस डेंजरस गुड्स रेगुलेशन यूएन भी क्लासिफाई करता है। तो कंसर्न है डिफरेंट डिफरेंट कि क्या रिलायंस ऑन द लिथियम आयन बैटरी सस्टेनेबल इन द लॉन्गर रन, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन रिन्यूएबल एनर्जी बूम के साथ इनका यूज जो है वो बढ़ते जा रहा है। ऑल्सो अगर हम इनको यूज करते हैं तो लिथियम के लिए इम्पोर्ट डिपेंडेंस भी है, तो वो भी एक इशू क्रिएट होता है कुछ कंट्रीज जैसे कि इंडिया के लिए भी। तो कहीं ना कहीं जो एविएशन स्टैंडर्ड्स हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, उसके लिए एक चैलेंज लिथियम आयन बैटरी पोज करता है। देन वाइल्ड फायर्स हमने देखा इन कैलिफोर्निया। तो क्या लेसन इंडिया के लिए है इससे? इतने लार्ज स्केल पे हमने देखा कि इतने अर्बनाइज्ड सिटी के अंदर हाई रिस्क एरियाज क्रिएट हो चुके हैं, इवैक्यूएट लोगों को करना पड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस हुआ है, इकोलॉजिकल लॉस हुआ है। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आउटडेटेड सिस्टम अगर होगा तो उसके तो वाइल्ड फायर्स को कोप अप नहीं कर पाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि एक मेजर लेसन हमने देखा फ्रॉम कैलिफोर्निया, जिसमें फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम रॉबस्ट होना चाहिए, फ्लड रिकॉर्ड होना चाहिए, डेटा होना चाहिए हमारे पास, अर्बन प्लानिंग इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए टू हैंडल द क्लाइमेट रिस्क्स, incorporating green infrastructure, incorporating water management systems in the urbanization plans also, promoting climate resilient insurance policies। ये एक यूनिक एस्पेक्ट हो जाता है जहाँ पे डेवलप करना इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को दैट प्रोवाइड्स कवरेज फॉर द क्लाइमेट रिस्क्स ऑल्सो, जैसे कि फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, जो कि इंडिया भी फ्रीक्वेंटली फेस करता है। तो जो गवर्नमेंट बैक डिजास्टर इंश्योरेंस स्कीम है दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। वल्नरेबल कम्युनिटीज जैसे कि इंडस्ट्रीज या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस फॉर द नेचुरल डिजास्टर, अर्ली वार्निंग सिस्टम होना जरूरी है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होना जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें भी अडॉप्ट करनी चाहिए। एमएसएमईज, लोकल इकोनॉमी, वहां पे हम सपोर्ट कर सकते हैं ताकि क्विक एक्शन लिया जा सके एंड एक बाउंस बैक करने में भी क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा हमारा फ्रॉम द डिजास्टर। सो डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है। ऑल्सो पब्लिक अवेयरनेस एंड ऑल्सो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी रोल होना चाहिए इन डिजाइनिंग द क्लाइमेट रेजिलिएंट पॉलिसीज, तभी उनको इम्प्लीमेंटेबल बनाया जा पाएगा। So we have covered for today. Thank you so much everyone for joining. Keep watching and keep learning with Ansar Kari.